various trade. We want to enhance it to a different level, and we want to mainly focus towards the banking and finance industry and work specialized courses in those things. Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? Ji, we can hear you. Okay. We still have 4 minutes. सदफ लेकिन आपकी जो आवाज़ वॉल्यूम देखें आपका ठीक है जी I think there is some जी सदफ फिर दोबारा बोलें बात करें ना just a second Wasim sir, actually there is some issue in sharing the screen. Just a second. I think there is some issue with your mic as well. मैं वॉल्यूम ज्यादा कर रही हूँ. Can you hear me? जी सुन तो रहे हैं लेकिन you know out of 100 it is around 40-50. क्यों हाजिब क्या मैं ऐसे सुन रहा हूँ या आप क्लियर सुन रहे हैं? नहीं ठीक है आवाज सही है मुनासिब है वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम आपकी ठीक है आवाज बिल्कुल ठीक है अरसलान की आवाज भी बिल्कुल ठीक है वॉल्यूम के साथ मैडम सदफ की भी वॉइस ठीक है आवाज सही आ रही है मैं विड्रॉ करता हूँ जी everyone. We still have 3 minutes और हमारे पास कुछ और लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. इमरान भाई आप जरा अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि एक स्क्रीनशॉट ले लें आपका भी ना. We'll be doing that in the end. जी जी आप सही. जी मैं पहले बता रहा था कि अरसलान ने हमें बताया 171 रजिस्ट्रेशन है. अब अल्लाह करे कि वो जो 2:30 से 2 बजे किया है उसकी वजह से कोई फर्क ना पड़े. अदरवाइज बहुत सेटिस्फैक्ट्री नॉमिनेशन है 171 बहुत जबरदस्त. जी so we are live और हमारे पास अभी 19 attendees have already joined in. Should we wait for another minute or two before we start? सदफ अभी तो 159 हो रहे हैं. आई थिंक 2-3 मिनट एक दफा वीडियो रन करवा लें. जी हाँ एक दफा वीडियो रन करवा लें. वैसे जनरली हमारे अदर सेशंस में मैंने देखा है कि कम से कम जो स्पेसिफाइड टाइम से 5 मिनट तक लोग ज्वाइन करते रहते हैं. कोई बात नहीं हमें कुछ इंतजार करके कर देना चाहिए लेकिन निभाव का जो भी एसओपीज हो सही. नहीं हम लोग नॉर्मली टाइम को एडहेयर कर रहे होते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट अभी वेट कर बस
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं आई वेलकम यू. हम लोग बस शुड वी स्टार्ट? जी सदफ, मेरा ख्याल है कि गो है 28 चलें हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. On behalf of National Institute of Banking and Finance, I welcome you all to this webinar. You're aware that NABAF is training subsidiary of State Bank of Pakistan, and NABAF has been playing its role not in capacity building of State Bank and its subsidiaries, but the entire financial sector of Pakistan. We conduct regular training courses, workshops, seminars, webinars, and awareness programs on topics of emerging trends and issues of topical interest in different areas of banking and finance. Lately, the topic of today's webinar titled Demystifying Islamic Finance, it is also part of the same series. Lately, low-cost housing has been in the news, and SBP has been at the forefront to develop this sector by recently introducing regulatory changes. And I'm sure you must have some questions and queries in your minds that will be answered through today's webinar. We are honored to have our esteemed panelists today. I will proceed with the brief introduction of both of them. We have Mr. Imran Ahmed, who is Additional Director, Development Finance Support Division of State Bank, BSE. He brings along diversified experience of working in different departments of State Bank, including Islamic Banking, Development Finance Group, Foreign Exchange Policy, Banking Inspection, Infrastructure and Housing Finance, to name a few. Our second panelist for today is Mr. Mohammad Jahanzeb Saeed. He is Head of Home and Consumer Development Finance, Products, Consumer Banking, Dubai Islamic Bank. Mr. Jahanzeb Saeed is a seasoned Islamic banker. He brings along 18 years of retail, corporate, and consumer banking experience at Standard Chartered, HPL, Bank Islamic, Dubai Islamic Bank, and Angro. He is also the only master trainer for Islamic mortgage finance in Pakistan, and he has been trained by World Bank Group under the auspices of Canadian Mortgage Association. This was the brief introduction of our trainers, and before I pass on the control to our trainers to start today's webinar, I would request all the attendees to post their questions in Q&A section of this webinar. You will see a small window with the chat box, so please post all your questions there. We'll start with Mr. Imran Ahmed, and then Mr. Jahanzeb will take over from him, and we'll answer the questions in the end of the session. Over to you, sir. Imran sir, आप unmute कर लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम. बहुत शुक्रिया निवाफ का ये सेशन अरेंज करने का. डेफिनेटली हमारे गवर्नर साहब की विजन के तहत एक ज़बरदस्त हाउसिंग फाइनेंस का प्रोग्राम शुरू किया गया है, और इसमें ऑफ कोर्स टॉप राइट फ्रॉम द टॉप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक की सीनियर मैनेजमेंट, बैंकों के प्रेसिडेंट, CEOs सब इन्वॉल्व हैं, डीपली इन्वॉल्व हैं. सब ने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया है, इसको आगे लेके जा रहे हैं. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग कि इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें. तो मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी इसमें आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि एक पाकिस्तान में पर्सपेक्टिव क्या है हाउसिंग फाइनेंस का, स्टेट बैंक की क्या इसमें कुछ इनिशिएटिव्स रहे, थोड़ा सा हम टच करेंगे जनरल हाउसिंग फाइनेंस की जो स्टैटिस्टिक्स है उनको, एंड देन हम इसको जो हमारी मॉर्गेज जिसको हम मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम कहते हैं, इसके हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि ये स्कीम किस तरह से चल रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं. काइंड स्टार्ट स्लाइड शो. ओके, अच्छा जी, थैंक यू मंजूर, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई. अच्छा जी, पाकिस्तान में यानी ज़ाहिर है कि ये तो पाकिस्तान हो जो कहीं भी हो, ये एक बेसिक नीड होती है. तो डिफरेंट हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं उसको तवज्जो देते आए हैं, चाहे वो हमारे खाने पीने की चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान,
इस सिलसिले में सबसे पहले एक पॉलिसी बनाई गई थी 2001 में, और उस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी, बट डेफिनेटली उस पर कोई ज़्यादा अमल नहीं हो पाया। एक हाउसिंग एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया था 2006 में, ये भी हमारे एक गवर्नर साहब थे, तो उस वक्त की सबसे बहुत अच्छी शख्सियात जो रेलिवेंट थी फाइनेंशियल सेक्टर से या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, वो उन्होंने इस पे काम किया और 10 बेहतरीन किस्म की उनकी एडवाइसेस थी, उनकी रिकमेंडेशंस थी, जिन पे स्टेट बैंक ने काफ़ी हद तक काम करने की कोशिश की। तो उसी का ही एक पार्ट था कि बिल्डर डेवलपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो स्टेट बैंक ने 2014 में इशू कर दी। एंड देन प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर हाउसिंग फाइनेंस, जो कि प्रीवियसली पार्ट ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस थी, बट स्टेट बैंक ने एक ग्रेजुअल जर्नी की है इस हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से। उसमें फिर एक ये भी किया कि जो पीआर फॉर हाउसिंग फाइनेंस थी, इनको सेपरेट कर दिया फ्रॉम कंज्यूमर, ताकि बैंक्स जो हैं उनको भी अनेबल किया जा सके सेपरेट सेटअप्स की तरफ ले जाने के लिए। ज़ाहिर है उस वक्त के लोगों ने भी एनवीएन किया होगा कि आने वाले वक्तों में हाउसिंग फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तो एक सेपरेट सेटअप होना चाहिए। इसमें बाद में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स भी आई हैं, दैट्स गुड के मैनेजमेंट मार्केट के हिसाब से एडजस्टमेंट होती रही। एंड देन ऑफ कोर्स फोरक्लोजर लॉज पे काम होता रहा, इस पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने काम किया, स्टेट बैंक लीड कर रहा था एंड अदर स्टेक होल्डर्स वर contributing to this cause. Financing facility for low cost housing for special segments अनाउंस की, इसमें स्टेट बैंक ने रिफाइनेंस देने का ऐलान किया। सिमिलरली फिर हाउसिंग फाइनेंस मार्कअप सब्सिडी स्कीम जो है 2020 से शुरू हुई, जिसपे ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले कहा तमाम स्टेक होल्डर्स ने बहुत ज़बरदस्त बेतहाशा मेहनत की है। इसके आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरीन किस्म के नताइज आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इसकी जो अप्रूवल्स हैं वो बढ़ रही हैं, डिसबर्समेंट्स बढ़ रही हैं। एंड स्टेट बैंक एंटर्ड द मैंडेटेड टारगेट्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन 2020। इसमें उनके जो ओवरऑल फाइनेंसिंग साइड है उससे लिंक करके कह दिया गया कि उसके सर्टन परसेंटेज जो है वो हाउसिंग में होना ज़रूरी है। तो इससे भी बैंकों ने फिर अपना, ऑफ कोर्स ये सिर्फ मॉर्गेज फाइनेंसिंग नहीं है जो इंडिविजुअल को दी जाती है, इसमें हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन दोनों को शामिल किया गया। देन फिर स्टेट बैंक ने एक मेजर जो उस पर काम किया इनिशिएटिव पे, ये पाकिस्तान मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी का क़याम था। इसमें वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी ज़्यादा ताउन किया और ये थोड़ा लंबा चला प्रोजेक्ट, बट एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी जब बन गई एक लंबी जर्नी के बाद वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से, तो ये भी आजकल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे बैंकों से अरेंजमेंट्स किए हैं उनके पोर्टफोलियो को रिफाइनेंस करने के लिए। और मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो स्कीम आई है, इसमें भी क्रेडिट गारंटीज का जो अरेंजमेंट है PMRC के जरिए किया गया है। एंड देन ऑफ कोर्स हमने इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ की, स्टेट बैंक ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स भी करते हैं, एंड एज वेल एज बैंकिंग कोर्ट जजेस के साथ भी हमने काम किया, ताकि वहाँ पर भी जो बैंक्स को अगर केसेस ले जाने हो और वो स्टकअप हो जाते हैं तो वहाँ से डिसीजन जल्दी आना शुरू हो। तो दिस हैज़ बीन अ ब्रीफ पर्सपेक्टिव के पाकिस्तान में हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस किस तरह से चलता रहा। मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। जो प्रेजेंट रिजीम है इसमें ये यानी हाउसिंग फाइनेंस की स्कीम लॉन्च की गई, और ऑफ कोर्स इसमें हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो VN है, उनके एफर्ट्स हैं वो काफ़ी अनथक हैं। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, डीपली इन्वॉल्व हो के पर्सनल इंटरेस्ट लेके। वो हैं गवर्नर साहिबा हैं सैयद समर हसनैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेवलप्ड फाइनेंस ग्रुप के, उसके अलावा मोहम्मद अशरफ खान साहब हैं MD SBBSC, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के साथ मिलके। इस पे अभी आएंगे, हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। हाउसिंग एडवाइजरी ग्रुप का मैंने जिक्र किया, तो ये उस वक्त के बेहतरीन जहनों को इकट्ठा किया गया। उन्होंने कहा कि जी कुछ हम 10 किस्म की दे रहे हैं रिकमेंडेशन, अगर इस पे वाकईतन काम कर लिया जाए तो पाकिस्तान में हाउसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इसको सम अप कर दिया कि लीगल फ्रेमवर्क को रिफॉर्म कर दें, फोरक्लोजर, ट्रांसफर, टेनेंसी, इन सबको रिव्यू करके जो नीड ऑफ द आवर है उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रेशनलाइज किया जाए। अब ये मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ है, और उन्होंने रिकमेंड किया था, या इवन जो हाउसिंग पॉलिसी 2001 में आई थी उसमें भी इसको काफ़ी रिड्यूस लेवल पे देखा गया था, बट एनीवे उतनी नहीं हो पाई। अभी भी हम देख रहे हैं MPMG पे हमें कंप्लेंट्स भी आती हैं, लोग शेयर करते हैं कि जी हमारा कर्जा तो इतना थोड़ा है, बट हमारी उसके अलावा जो कॉस्ट हमें
इनकर करनी पड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा थी, बट लेट्स होप कि वक्त के साथ साथ ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली उन्होंने कहा जी लैंड रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड किस्म का सप्लाई ऑफ लैंड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग को इंश्योर करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट ज़्यादा है, बट एनीवे उनकी रिकमेंडेशंस थी कि ये होना चाहिए। स्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग लार्ज स्केल डेवलपर फाइनेंस, जिसमें मैंने अर्ज किया कि वन ऑफ द ये था कि हमने उसमें गाइडलाइंस इशू की कि बैंक्स जब डेवलपर फाइनेंस कर रहे होंगे तो किस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर था फैसिलिटेट लो कॉस्ट लो इनकम हाउसिंग मॉडल्स एंड प्रोडक्ट्स, इस पे भी हमने एक स्कीम भी दी, प्लस मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो आई है ये भी इसका एक नमूना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को प्रमोट करने के लिए एंड फैसिलिटेट करने के लिए रिकमेंड किया गया, वो अब हमारे कोल में कुछ आए हैं, बस उसका उनका काम चल रहा है। होपफुली जो SCCP ने कुछ उसमें रेगुलेटरी चेंजेस लाई थी उसके बाद इसमें बेहतरी आ रही है। प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर हाउसिंग लोन्स, ये भी एक रिकमेंडेशन थी जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने PMRC यानी पाकिस्तान मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी की शक्ल में मौजूद है। PMRC के बेसिकली दो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो लॉन्ग टर्म फंडिंग दे मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं उनको या हाउस फाइनेंस कंपनीज को, ताकि उनकी जो बुक्स में मैच्योरिटी मिसमैच होता है उसको कवर किया जा सके। सिमिलरली एक फ़ायदा और होगा उनके काम करने से कि बैंक्स विल बी एबल टू कोट फिक्स रेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी तो ये होता है कि बैंक हर साल अपना जो रेट है उसको रिवाइज करते हैं एज पर एग्जिस्टिंग काइबोर से जो लिंक होता है। इस PMRC से फंडिंग लेने के बाद बैंक्स एनेबल हो गए हैं कि वो फिक्स रेट मॉर्गेजेस भी ऑफर कर रहे हैं। फिर एक कंसेप्ट है हाउसिंग ऑब्जर्वेटरी का, जिसमें हाउसिंग मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, ये काफ़ी ब्रॉडर है, इसमें अभी तक काम नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मॉर्गेज बैंकिंग इंडस्ट्री, इस पे ज़ाहिर स्टेट बैंक निबाफ का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ये इस पे काफ़ी ज़्यादा सेशंस करते रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान भर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कैपेसिटी बिल्डिंग की एक किया हुआ है, सिलसिला शुरू किया हुआ है डिफरेंट लर्निंग अपना बैंकर्स के साथ मिलके। आज का जो टॉपिक इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस पे है, इस पे अगर हम जाएं तो हम पहले देखते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस क्या डिज़ायर करता है या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो जाहिर है कि उसमें ये है कि शरिया बेस या शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग होनी चाहिए, यानी उसमें रियल एसेट जनरेट हो, रियल एसेट्स के अगेंस्ट फाइनेंसिंग हो रही हो, तो ये एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है इस्लामिक फाइनेंस का। देन एसेट ओनरशिप या होम ओनरशिप की तरफ लेके जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए इस्लामिक फाइनेंस की एक्टिविटीज के जरिए। एंड देन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बेतहाशा लोग जो कन्वेंशनल फाइनेंसिंग थी उसकी वजह से बैंकिंग सेगमेंट में नहीं आना चाहते थे, तो उसके लिए जो इस्लामिक बैंकिंग है ये भी हमें हेल्पफुल साबित हो रही है। अब अगर हम इसी मॉडल को देखते हुए देखें कि इस्लामिक होम फाइनेंसिंग में हमें किस तरह से वाकईतन क्या हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, तो इस्लामिक होम फाइनेंसिंग एक एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है जो डिमिनिशिंग मुशारका के तहत की जाती है। आई एम होपफुल के जो हमारे लर्नर स्पीकर हैं दूसरे जहांजेब साहब, वो इस पे थोड़ा और हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से डिमिनिश्ड मुशारका वर्क कर रहा है। फिर होम ओनरशिप बढ़ रही है इसके जरिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वाकईतन इस्लामिक होम फाइनेंसिंग शुरू ना की गई होती तो जो जनरल हाउसिंग फाइनेंस ट्रेंड था वो काफ़ी स्लो था, बल्कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिक्लाइनिंग भी था। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पिक्चर में आने से ये इसकी रफ्तार बेहतर हुई और वक्त के साथ साथ उन्होंने अपना शेयर मोर देन 50% कर लिया है। एंड आई एम होपफुल कि आने वाले दिनों में ये जो शेयर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ न्यू एसेट क्लास, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब देखें इसमें जो हाउसिंग है इसमें कहा जाता है कि मोर देन 40 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। हम सब विजुअलाइज कर सकते हैं कि घर जब बनता है तो उसमें उसका मैप अप्रूवल से लेकर, बल्कि मैप डिज़ाइनिंग से लेकर फिर आगे उसके बाद बेतहाशा इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट, सरिया, एल्यूमिनियम, ऑयल, आई मीन पेंट्स, सो थिंक ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। इसी तरह इस्लामिक होम फाइनेंसिंग के जरिए चूँकि एक्टिविटी बढ़ गई है फाइनेंसिंग की, तो जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ये भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स बैंक्स जब फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन पे उनकी तवज्जो होती है, तो जो लोग भी लेके आते हैं अपने फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स तो उनको
फॉर एग्जांपल मैप अप्रूव नहीं है, फॉर एग्जांपल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब वो जाते हैं फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये रिक्वायरमेंट पूरी करने, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू इम्प्रूव हो रहा है। फिर डिसिप्लिन आ रहा है होम ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन में। हमारे मुल्क में तो ये लोगों को ख्याल ही नहीं होता कि हमने म्यूटेशन करानी है या ओनरशिप चेंज करानी है, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। इस ड्राइव से एक डिसिप्लिन आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दोनों जगह पे हो रही है, बैंक्स में भी हो रही है और उसके अलावा जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी वो हो रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अच्छा जी, अब अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की तरफ आ जाएं, विल आल्सो लुक के इस्लामिक बैंकों ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो ये ओवरऑल स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग पोजीशन है कि दिसंबर में ये 105 बिलियन पे था, तो दिसंबर 20 में, तो दिसंबर 21 में 163 बिलियन पे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी स्टडी इंक्रीज है। अलबत्ता इसमें चूंकि मार्च का डेटा अभी हमारे पास फाइनलाइज नहीं था, इसलिए हम दिसंबर का शेयर कर रहे हैं। ये एक रैंकिंग शो करता है कि लीडिंग बैंक्स कौन से हैं। अगर हम जैसे हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हिसाब से देखें दिसंबर एंड पे, तो बैंक इस्लामी लीड कर रहा है, मीज़ान बैंक दूसरे नंबर पर है, HBFC तो ज़ाहिर एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, इस हवाले से वो इसमें अपना लीड कर रहे हैं। अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं तो जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये भी प्योरली इस्लामिक मॉडल पे फाइनेंसिंग कर रहे हैं हाउसिंग में। अब बैंक इस्लामी, मीज़ान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दुबई इस्लामिक, ये माशाल्लाह सारे ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ इन्होंने फाइनेंसिंग भी की है और ये इस जो हमारे पास रैंकिंग है इसमें भी खासे ऊपर आ गए हैं। अब अगर हम ये देखें कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस्लामी, अपना जो वेरियस एक्टर्स हैं इस्लामी हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से, तो इस्लामिक बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन इस तरह से है, माशाल्लाह उन्होंने 82 बिलियन कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल आउटस्टैंडिंग में। जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनका दिसंबर 21 में 64 बिलियन था, और जो HBFCL है और एक आध और DFI है उनका अराउंड 16 बिलियन है। इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखें कि वो उसमें क्या ट्रेंड है कि कौन किस पोजीशन पे है आउटस्टैंडिंग के हिसाब से एज ऑफ दिसंबर 2021, तो अगेन ज़ाहिर है बैंक इस्लामी लीड कर रहा है, मीज़ान इस तरह से, यानी फैसल बैंक भी अब जो माशाल्लाह एक दुनिया भर में एक ज़बरदस्त किस्म की कन्वर्जन मॉडल है और शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वर्जन होगी ऑफ ए कन्वेंशनल बैंक इनटू इस्लामिक। इनकी शायद 4-5 ब्रांचेस सिर्फ रह गई हैं जो कन्वर्ट होनी है, बाकी पूरे का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अब ये भी माशाल्लाह 5वें नंबर पे हैं और अभी ये कुछ लिमिटेड शहरों में कर रहे थे कुछ अर्सा पहले तक, अब इन्होंने इसको ओपन अप किया दूसरे शहरों में। तो होपफुली ये आने वाले वक्तों में इस जो इनका मोमेंटम है इसको और बढ़ाएंगे। तो ये एक रैंकिंग है आउटस्टैंडिंग हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से जो कि दिसंबर 31 को थी। ये हमें बोरोर्स के हवाले से बताता है कि जाहिर है कि जो HBFCL है ये एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, इनके यहाँ जो नंबर ऑफ बोरोवर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं और चूँकि साल से ये सर्व कर रहे हैं। बट हाउएवर अगर हम देखें तो इस्लामिक बैंकिंग का जो नंबर है ये भी कोई 11,000 के करीब पहुँच चुका है और कन्वेंशनल बैंक्स भी चूँकि काफ़ी अरसे से फाइनेंसिंग कर रहे हैं, इनके जो आउटस्टैंडिंग बोरोवर्स थे दिसंबर 21 को ये अराउंड 14,000 थे। बट हम अगर ये देखें कि कन्वेंशनल वर्सेस इस्लामिक बैंकों का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा है, इस कम अरसे में ये इतना इन्होंने अपना न सिर्फ मोर देन 50% इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो किया अपना शेयर लिया है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी ये लेके चल रहे हैं। एक मोहम्मद रफीक का नजर आ रहा है कि रेज हैंड, निवाफ के साथ ही क्या कहेंगे कि अभी हम इनसे करते हुए चलें या जैसे हमने एग्री किया था कि क्वेश्चन एंड आंसर में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें प्लीज। वेबिनार फॉर्मेट में हमने पार्टिसिपेंट्स को म्यूट किया हुआ है, सो आइदर यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट और क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन प्लीज। इमरान भाई पहला क्वेश्चन रीड्स के बारे में कि व्हाट आर रीड्स ना, तो जब तक उनको रीड्स की नहीं समझ आएगी तो अगला क्या उनको समझ आएगा, इसलिए पहले रीड्स का एक्सप्लेन कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट आर रीड्स। सॉरी मैंने थोड़ा सा वो राइट किया, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर रीड्स वो जो लिसनर है उसको समझ नहीं आई रीड्स के बारे में। अच्छा चलें, ये तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, इसमें
ایک یا ایک سے زیادہ پارٹنر مل کے اس کو ایک کمپنی بناتے ہیں جو کہ کسی بھی پروجیکٹ کو لے کے چلتی ہے اور اس میں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ ایک بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں یا ایک کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں, اس میں آ کے آپ بھی اپنا شیئر ڈالیں اور پھر اس کو جب وہ آگے لے کے چلتے ہیں تو ان میں ایک شیئر قسم کی یعنی ایک ٹرسٹ بنا کے اس کو بلڈ کرتے ہیں. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے ہی اپنا پول کر لیتے ہیں اپنے ریسورسز کو, اور اس کے بعد میں پھر اس کو ایسا کرتا ہوں کہ جو جہاں زیب ہے ان کا اس پہ تھوڑا سا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, ان سے کہوں گا کہ وہ اس پہ فردر رسپونڈ کرتے ہیں. سیکنڈ کویسچن کو بھی میں ڈیفر کرتا ہوں جہاں زیب کے لیے, وہ اسلامی بینک میں ہے. اچھا, اس میں ایک کویسچن آیا کہ واٹ آر ادر ایچ بی ایف سی ڈی ایف آئیز انوالوڈ ان ہاؤسنگ فائنانس. اس وقت تک تو ایک آدھ اور کمپنی رجسٹر تو ہو چکی ہے پاکستان ہاؤسنگ فائنانس کے نام سے, لیکن فی الحال ان کا اتنا زیادہ بزنس نہیں ہے. اس وقت ہمیں جو رپورٹ ہوتا ہے ایک پاک لیبیا ہولڈنگ کمپنی والے ہیں, وہ کچھ کیسز رپورٹ کرتے ہیں اور صرف ایچ بی ایف سی رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس وقت 2 ڈی ایف آئیز ہیں جو فی الحال ہاؤس فائنانس کر رہے ہیں. ایک ہاؤس فائنانس کمپنی رجسٹر ہو چکی ہے, وہ آف کورس چونکہ اسٹیٹ بینک کے ایمبٹ میں نہیں ہے, وہ ایس ای سی پی کے ایمبٹ میں ہے, تو ان کی جو سپرویژن اور رپورٹنگ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. بٹ اسٹیٹ بینک کے جو پلیٹ فارم سے ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اس میں یہ 2 ڈی ایف آئیز آ جاتے ہیں. اچھا جی, اب ہم آ گئے ہیں گورنمنٹ مارک اپ سبسڈی اسکیم کی طرف جو اپنا گورنمنٹ پاکستان نے لانچ کی. تو گورنمنٹ پاکستان, جیسے میں نے کہا کہ مختلف حکومتیں اس سے مختلف ایفرٹ کرتی آئی ہیں اور انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے ورکنگ کی ہوئی تھی. اس میں اب اس موجودہ جو دور حکومت ہے اس میں یہ سبسڈی اسکیم لانچ کی گئی. اسٹیٹ بینک از دی ایگزیکیوٹنگ پارٹنر ود گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ جو ایک فیڈرل ادارہ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نیفڈا, ان کے ساتھ مل کے اسٹیٹ بینک اس کی ایگزیکیوشن کر رہا ہے. اینڈ the markup subsidy facility is available through all banks including microfinance banks. اچھا جی, بینک وائز فگرز بھی آپ کو ایم پی ایم جی بتاتے ہیں, 1 منٹ. اچھا جی, اس میں اگر ہم دیکھیں گے کیا کیا گیا ہے, کیا ایفرٹس کی گئی ہیں, تو گورنمنٹ لیول پہ اس پہ منتھلی میٹنگز تھی. ہمارے گورنر صاحب اور ڈپٹی گورنر صاحبہ جو ہیں یہ ویکلی یا فورٹ نائٹلی بیسس پہ بینکوں کے پریزیڈنٹ اینڈ سی او سے اسٹینڈنگ کمیٹی ایک بنائی ہوئی تھی, اس کی میٹنگ کرتے ہیں اور اس کی کلوز مانیٹرنگ کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے سینئرز کا ذکر کیا, گورنر ڈپٹی گورنر صاحبہ کا, یہ ڈیلی بیسس پہ اس کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بینک کی کیا پوزیشن ہے, کہاں پر امپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آف کورس اس میں روڈ شوز میلاز کیے گئے ہیں مختلف شہروں میں, اور بھی پلانڈ ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ہے, اور ویڈیو میسیجز ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کے بھی اور ڈفرینٹ بینکوں کے پریزیڈنٹس کے بھی, جو کہ آف کورس سوشل میڈیا پہ ایئر کیے گئے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور انکریج کرنے کے لیے. پھر جو سکسیزفل اپلیکینٹس تھے یا سکسیزفل پرسنس تھے اس اسکیم میں, ان کے ویڈیو میسیجز بھی بنا گئے, اور ہمارے گورنر صاحب خود کافی سارے لوگوں کے گھروں میں گئے, انہوں نے ان کے انٹرویوز کیے, ان کو پوسٹ کیا ہے. اس کو فردر ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو یہ کچھ اور سسٹم, کچھ اور ارینجمنٹس بھی کیے کہ ہمارے جو بی ایس سی آفیسز ہیں ان کی ٹیموں نے بینک برانچز کی مسٹری شاپنگ کی, تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پر ان کے پاس اویئرنیس ہے کہ نہیں ہے, ان کے پاس تیاری ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس جو اپلیکیشن فارمز ہیں یا وہ پراپر انفارمیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اس سے کافی فرق پڑا. سملرلی ایک ہم نے کمپلینٹس پورٹل بھی لانچ کیا ہوا ہے, جس پہ ہمارے پاس اب تقریباً 13-14 ہزار کمپلینٹس آئی ہیں. ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو کہ ان کی جو ریکویسٹ یا ان کی اپلیکیشن سبمیٹڈ ہے مختلف بینکوں میں, ان پہ ڈیسیژنس ان کو کرایا جائے. پھر ہمارے بی ایس سی آفیسز کے جو آفیسز ہیں یہ ملک کے 15 شہروں میں ہیں, اس پہ ہم نے وہاں پر ہیلپ ڈیسک قائم کی ہے, کیونکہ وہاں پر لوگ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کے لیے آتے ہیں, کوئی کیش چینج کرانے آتا ہے, کوئی بانڈس کے لیے آتے ہیں, ڈفرینٹ ان کی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ آ کے اس کی انفارمیشن لے لیں. اینڈ دین آف لیٹ ہمارے جو بی ایس سی آفیسز ہیں اس میں محنت کر رہے ہیں کہ وہ
उनके जो रीजन्स हैं वहाँ पर जो भी डिफरेंट कंपनीज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोका कोला है या प्राइवेट एंटिटीज या गवर्नमेंट एंटिटीज, उनके एम्प्लॉयज़ को भी जाके उन्होंने बताया कि भाई ये स्कीम अवेलेबल है और इसमें जो भी एलिजिबल हो सकते हैं एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्कीम, उनको हम एनकरेज करते हैं। न सिर्फ हमारे ऑफिस खुद जाते हैं बल्कि वो बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, उसमें आज भी हमारी टीमें निकली हुई होंगी इस तरह के रोड शोज के लिए, फिर वो उनके पर्टिकुलर्स लेके उनकी चॉइस के बैंक, ज़ाहिर है कि वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बताते हैं कि हम इस बैंक के साथ चाहेंगे कि हमारा पैचअप करा दिया जाए, उनको रेफर करते हैं, फिर एक रिव्यू प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस एफर्ट के ज़रिए काफ़ी बेहतरीन किस्म का एक लीड जनरेट हुई है बैंकों के लिए, और वो फिर उनको रिव्यू करके अप्रूवल और व्हाट्सएवर उनका भी जो भी डिसीजन होता है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। फिर बैंकों को कुछ ज़ाहिर हिदायत दी गई थी कि हमारे जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे मिस्टर शॉपिंग के ज़रिए या कंप्लेंट्स पोर्टल के ज़रिए, उसमें उनको कहा गया था कि आप किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, भाई उनको एक ट्रैकिंग नंबर दें, मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, टर्न टाइम को बेहतर करे, फिर ट्रेनिंग्स का कहा गया, और अपने ब्रांच ऑफिशियल्स के या जो उनके कॉल सेंटर्स हैं इन सब की ट्रेनिंग का कहा गया। सिमिलरली उनको कहा गया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी इम्प्रूव करें, एंड प्रोसेसिंग फी पे कुछ लोगों की हमें कंप्लेंट्स आ रही थी, कोई कुछ ले रहा है कोई कुछ ले रहा है, उसको हमने कहा कि जी आप रैशनलाइज करें। एंड देन ऑफ कोर्स जो क्लबिंग ऑफ इनकम के हवाले से भी लोगों की कंप्लेंट्स होती थी, वो डिफरेंट आती थी, उसको भी हमें कहा गया कि आप इसको भी बैंकों से कहा गया कि आप इम्प्रूव करें। ये एक हम रैंकिंग आपको दिखा सकते हैं कि किस बैंक में किस तरह से एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज़्यादा आई है, दूसरे में मीज़ान है, फिर हबीब बैंक है, ये एक दी गई है। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर हम देखें तो भी बैंक ऑफ पंजाब मीज़ान स्टैंडर्ड चार्टर्ड सबसे ऊपर है, अलबत्ता अमाउंट के हिसाब से बैंक इस्लामी ऊपर नज़र आता है, हबीब बैंक में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये अगर हम इसी तरह से हमारे 3 कैटेगरीज हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड हैं, फिर एप्लीकेशन अप्रूव्ड है एंड देन डिस्बर्स्ड हैं। अगर हम अप्रूव्ड में देखें तो मीज़ान ने सबसे ज़्यादा अप्रूवल दी हुई है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो हबीब बैंक है, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अगर हम उसमें अमाउंट और तो दूसरे तीसरे नंबर पे ही आ रहे हैं अपना बैंक इस्लामी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अगर हम इसमें जाके देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अपना डिसबर्समेंट क्या है, तो नंबर्स के हिसाब से तो जाहिर है कि लो लेवल पे कर रहे हैं, नेशनल बैंक, HBFCL ये हैं, अलबत्ता इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर हम देखें तो बैंक अल्फा, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये है कोई अराउंड 31 मार्च की, हो सकता है इस के बाद थोड़ी सी चेंज आ गई हो, मे बी बैंक इस्लामी ऊपर निकल गया हो या अल्फा भी ऊपर हो। तो ये इस तरह की इनकी रैंकिंग है जो हमारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। That's all from my side about housing finance in Pakistan and MPMG. अच्छा जी, अगर चैट बॉक्स में देखें प्लीज शेयर बैंक वाइज डिस्बर्समेंट फिगर। आई हैव अटेंडेड मेला फ्रॉम अस्करी इस्लामिक इन फैसलाबाद एंड दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू जी, इंशाल्लाह इस तरह के और भी मेलाज होंगे, मुल्तान में एक प्लान है, फिर होपफुली और शहरों में भी होंगे, तो आप लोग वहाँ भी जाएं, भरपूर शिरकत करें, लोगों को लेके जाएं। अच्छा चलें जी, मेरे ख्याल में इस वक्त तक तो फिलहाल कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, या चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं है, तो आई रिवर्ट बैक टू निबाह फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। I'll request Nazib Saab, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज साफ आ रही है सब लोगों को? जी बिल्कुल आ रही है। ये क्लियर है। तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बाप का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट किया हमें आज के सेशन के अंदर, और मैं अपने साथी पैनलिस्ट इमरान अहमद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया जो रिसेंट रेगुलेटरी स्टेप्स थे, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थे और जो स्टेट बैंक ने स्टेप्स लिए। And I would like to take this opportunity to thank the Governor of State Bank of Pakistan, Dr. Raza Bakir, and all the seniors at State Bank and SBP BSC जो बहुत ही दिन रात एक करके काम कर रहे होते हैं, और सच्ची बात है कि जिस कमिटमेंट के साथ स्टेट बैंक फॉलो अप कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है, आई थिंक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और ये जो ग्रोथ के नंबर्स शेयर किए इमरान साहब ने हाउसिंग फाइनेंस के,
इसमें आई वुड से कि बैंक्स का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आई वुड से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है. थैंक यू अगेन स्टेट बैंक फॉर दैट. अच्छा, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, इस्लामिक होम फाइनेंस डिमिस्टिफाइड. देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स को पहले सामने रखूंगा. पाकिस्तान के अंदर जैसे इमरान साहब ने कहा कि हमारे पास कोई 163 बिलियन का इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है. और लेकिन ये बहुत कम है अभी भी. एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है मॉर्गेज टू जीडीपी रेशो या मॉर्गेज डेथ के कितना गहराई है मॉर्गेज की उस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर. तो पाकिस्तान की 1% से भी कम है डिस्पाइट एवरीथिंग. और ये हमारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, उससे भी बहुत ज़्यादा कम है. मैं कल ऐसी थोड़ी रिसर्च कर रहा था रात में, तो मैंने देखा कि भाई जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है इंडिया, वहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस की मार्केट में क्या हो रहा है, कितने प्लेयर्स हैं, क्या साइज है. तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो आउटस्टैंडिंग होम फाइनेंस है, मैं इस वक्त कंस्ट्रक्शन लोन्स की बात नहीं कर रहा जो डेवलपर्स को दी जाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो रेजिडेंशियल मॉर्गेज होम फाइनेंस या होम लोन उसकी बात करूं, तो 15 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, 15 खरब इंडियन रुपए. मतलब हमसे समझने कोई 100 गुना ज्यादा वहाँ का मॉर्गेज वेल डेवलप्ड है. और अगर मैं और जीसीसी की तरफ जाऊं जबकि सऊदी अरब और दुबई वगैरह, तो वहाँ पे भी बैंकों का एक बहुत बड़ा पोर्शन, मोर देन 30% जो है वो होम फाइनेंस के अंदर होता है. डीआईबी बीइंग दुबई बेस्ड इस्लामिक बैंक, तो हमारा भी दुबई के अंदर होम फाइनेंस के अंदर और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा शेयर है. एंड दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स कि हमारे पास पोटेंशियल कितना ज्यादा है यहाँ पे. अच्छा, अब आ जाते हैं इस्लामिक होम फाइनेंस के हवाले से. देखिए जी, जो हमारे पास इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोई तकरीबन 17-18% जो है इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का शेयर है ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के अंदर. और ये इनविजन है कि 30% के अंदर हमारा ये शेयर जाना चाहिए इन द नेक्स्ट 3 इयर्स. लेकिन अगर हम इस्लामिक होम फाइनेंस की बात करेंगे तो मोर देन 50% जो शेयर है इस वक्त होम फाइनेंसिंग में वो इस्लामिक बैंक्स का है. ये आपको जो पाई चार्ट नजर आ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि कन्वेंशनल बैंक्स का शेयर 33 के करीब है, डीएफआईज का 14% है, और ये ग्रो कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्लामिक का शेयर. अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इंडस्ट्री के हवाले से, वो ये कि अगर हम फिगर्स देखें कि बेशक इस्लामिक बैंक्स तो मेजर प्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इवन जो कन्वेंशनल बैंक की विंडोज हैं, उन्होंने भी ये फैसला किया है कि हम होम फाइनेंस अगर करेंगे तो इस्लामिक में करेंगे. जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो कि कन्वेंशनल बैंक है, बट इनकी सारी इस्लामिक सारी जो फाइनेंसिंग होती है होम की वो इस्लामिक में होती है. अल्फला के अंदर भी मेजर शेयर अब इस्लामिक का हो गया है. एमसीबी ने अपना एक अलग इस्लामिक बैंक बना लिया है. हबीब बैंक इस वक्त सारी अपनी जो फाइनेंसिंग है होम की वो इस्लामिक में कर रहा है. सिमिलरली यूबीएल ने भी अब अपनी मेजॉरिटी जो फाइनेंसिंग है वो की है. हमारा होम फाइनेंस से जैसे इंट्रोडक्शन में बताया काफी पुराना एक रिलेशनशिप है. आज से कोई 2 साल कबल जो मंथली बुकिंग होती थी होम फाइनेंस की वो 1 बिलियन रुपए की होती थी. मतलब तमाम बैंक्स, आप बेशक इसमें एचडीएफसी को भी मिला तो 1 बिलियन से ज्यादा की फाइनेंसिंग नहीं होती थी. अभी जो इस वक्त लास्ट फिगर्स आई हैं, ये मैं मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ. ये जो अगर आप सामने एक आपको ग्राफ तो नहीं, एक चार्ट नजर आ रहा है, तकरीबन 10 अरब की फाइनेंसिंग मंथली हो गई है. और इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो अब इस्लामिक बैंक्स का तो है ही है, लेकिन इसके अंदर जो एमपीएमजी है उसकी वजह से एक मेजर बूस्ट मिला है. और ये हर महीने ग्रो कर रहा है. आप ये देखें कि जनवरी में तकरीबन कोई 6-7 अरब हुआ, फिर फरवरी में सेम मेंटेन हुआ, ये 10 है. और इस महीने जिस तरह के नंबर्स है कि डिस्पाइट रमजान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत तेजी से चीज बढ़ेगी आगे. अच्छा, मेरे पास कुछ पुराना डेटा भी मौजूद है. अगर आप ये देखें होम फाइनेंस की मार्केट, जैसे इमरान साहब ने कहा कि 100-105 अरब पे चल रही है, और ये पिछले कई सालों से थी, स्टैग्नेट की हुई थी, वही 60-80-92-100. लेकिन अब सिर्फ जो नंबर्स आए कि दिसंबर में 163, और आई थिंक जब हमारे पास मार्च का नंबर आएगा तो मेरा अंदाजा है कि हम 200 अरब में क्रॉस कर चुके होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी जंप है किसी भी सेक्टर के हवाले से. अच्छा, ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया हमारा.
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आई वांट टू कीप थिंग इंटरेक्टिव। मैं स्ट्रक्चर्स पे भी जाऊंगा जैसे इमरान साहब ने जिक्र किया था, बट मैं थोड़ा सा आपको जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज मैंने जो अभी लोग देखे इसमें हमारे पास मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग हैं, आई थिंक इसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, न्यू कमर्स भी हैं, तो आई वुड लाइक कि मैं एक दोनों को बुनियाद भी बताऊंगा और फिर ग्रेजुअली नॉलेज को बिल्ड भी करूंगा टू मीडियम एंड टू एडवांस लेवल। देखिए, होम फाइनेंस या इस्लामिक होम फाइनेंस के अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, आप ले सकते हैं। आपने अपने मौजूदा घर या अपार्टमेंट को रेनोवेट करवाना है, वो आप करवा सकते हैं। आप बैलेंस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं किसी कन्वेंशनल बैंक से, आपने होम लोन लिया हुआ है, HDFC से लिया हुआ है, तो आप वो कर सकते हैं। आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन, वो तमाम चीज़ें भी हैं, या सिर्फ अगर कंस्ट्रक्शन है, ज़मीन आपके पास है, वो तमाम इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है वो है बिजनेस फाइनेंस का, कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट जो है आप बिजनेस फाइनेंस के लिए पैसे भी ले सकते हैं, जो कि इक्विटी अनलॉक की प्रोडक्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा देखें, अगर हम में से जो लोग थोड़े से फेमिलियर हैं होम फाइनेंस से, एक तो हमारा इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट का प्लान होता है कि आपके एक सर्टेन प्रिंसिपल का पोर्शन होता है, एक सर्टेन जो है आपका प्रॉफिट का पोर्शन होता है, और आपकी पूरे टेनर में आपकी किस्त सेम रहती है। ठीक है, अभी हम रीप्राइसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल फॉर्म ले रहे हैं। और एक होता है अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसके अंदर जो है आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू में ज्यादा होती है, यूनिट बेस्ड, जिससे इस्लामिक होम फाइनेंस स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब इस्लामिक बैंक जो है अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हैं और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अरे एक चीज इमाम भाई, मैंने प्रेजेंटेशन खुद हटाई है उसके अंदर ना। अच्छा, एक चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि देखिए, ये जो होम फाइनेंस का मजमून है, इसके लिए अगर हम एक दिन भी लगा लें तो कम होगा। तो मैं ब्रीफली जो बुनियादी चीजें मैं उनको टच करूंगा, और मेरे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है निबाफ के साथ, तो कोई अगर किसी को डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिटेल में भी इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन आपके लिए अवेलेबल होगा। प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे हम लोग। जी जी, प्रेजेंटेशन भी शेयर जी। करेंगे हम। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, जो बुनियादी तौर पे फाइनेंसिंग की कैटेगरीज होती हैं वो ये होती है इस्लामिक के अंदर। एक तो डिमिनिशिंग मुशारका बेस्ड फाइनेंसिंग है। डिमिनिशिंग मुशारका में क्या होता है कि शुरू में जो बैंक का शेयर है वो ज्यादा होता है, और जैसे कि लफ्ज खुद बता रहा है डिमिनिशिंग की, ग्रेजुअली बैंक का शेयर कम होता जाता है और कस्टमर का शेयर जो है वो बढ़ता चला जाता है। आता वक्त ये कि बैंक जो है उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है और टोटल ओनरशिप कस्टमर के नाम पे आ जाती है। ये डिमिनिशिंग मुशारका का मॉडल कहलाता है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 95% जो बैंक हैं, मेजोरिटी जो इस्लामिक बैंक हैं, वो डिमिनिशिंग मुशारका बेस्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसी के साथ एक और मॉडल है जो कि रिलेटेड है, वो है शिरकतुल मिल्क कम इजारा, शिरकतुल मिल्क कम इजारा, जो इसेंशियली इसमें जो फर्क है, ये बेसिकली दुबई बेस्ड मॉडल है, और दुबई इस्लामिक बैंक इसको फॉलो करता है कि जिसके अंदर एक हम मुशारका एग्रीमेंट करते हैं और हम इजारा एग्रीमेंट करते हैं, और जो हमारा शेयर है वो भी ग्रेजुअली जो है वो बैंक का कम होता है, और इजारा के ऊपर जो रेंटल्स हैं वो हम कस्टमर्स लेते हैं। इसकी डिटेल अभी आगे आएंगी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, अब आ जाए हम कि प्राइसिंग किस तरह से होती है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो इमरान साहब ने PMRC के हवाले से बात की थी। देखिए, एक तो होता है फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट होम फाइनेंस के अंदर। अच्छा, प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है होम फाइनेंस में? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के फाइनेंस होते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में मॉर्गेज जो है एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। पाकिस्तान में पिछले समझ लें 1.5 साल या 2 साल तक तो फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट होते हैं। कुछ लोग 6 महीने के कायबोर को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो 1 साल के कायबोर को इस्तेमाल करते हैं। बट उसका नुकसान ये होता है कि मैंने आज अपनी इनकम के हिसाब से एक घर ले लिया। अब आप देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कायबोर की या मॉनेटरी कायबोर की वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। अब बाज़ मेजर जंप्स आ जाते हैं, जैसे रिसेंटली अभी 250 बिप्स का चेंज आया है। अब फ्लोटिंग रेट के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने तो एज अ बैंक सारा जो कस्टमर को इवेल्युएट किया हुआ है वो उसकी मौजूदा इनकम के साथ किया हुआ है। अगर एकदम से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं तो सारी की सारी कैलकुलेशन में मसला हो जाता है। और एज अ फाइनेंसियर, या अगर मैंने बैंक से फाइनेंसिंग ली हुई है, तो मेरे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इनको मेरी किस्त अचानक से बढ़ जाती है, और एक किसी तनख्वाहदार आदमी के लिए, लिमिटेड इनकम वाले बिजनेसमैन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसका हल ये निकाला कि PMRC के थ्रू फिक्स रेट की प्रोडक्ट्स ऑफर की। फिक्स रेट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन इस वक्त हैं, दो टेनर्स मौजूद है, एक 3 साल का और एक 5 साल का। तो अगर कोई भी बैंक, कोई भी कस्टमर है, वो चाह रहा है कि जी 3 साल के लिए मेरी किस्त फिक्स हो जाए,
तो वो 3 साल के लिए ले सकता है, कोई 5 साल के लिए लेना चाह रहे तो 5 साल के लिए चाहता है। और अब जबकि इस वक्त राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। तो हमारे पास पहली तो हो गई फ्लोटिंग रेट की प्रोडक्ट, और दूसरी हो गई हमारी फिक्स रेट की प्रोडक्ट। तीसरी एक और इसके अंदर प्रोडक्ट है जो कि हाइब्रिड प्रोडक्ट है। वो ये होती है कि कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि आपने पहले 3 साल या पहले 5 साल फिक्स रेट रखा, उसके बाद फिर आपने कहा कि नहीं जी मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको फ्लोटिंग पे कर लो, तो फ्लोटिंग पे भी किया जा सकता है। तो कस्टमर के लिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एफर्ट की वजह से PMRC, पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी के नाम से एक कंपनी स्टैब्लिश हो गई जो कि बैंकों को इस तरह की फाइनेंसिंग कर रही है। ना सिर्फ ये कर रही है PMRC, अब चूंकि जिक्र स्टार्ट हुआ है तो मैं बाकी फंक्शंस भी इसके डिस्क्राइब कर दूं। ये क्रेडिट गारंटी भी दे रहे हैं। क्रेडिट गारंटी क्या होती है कि जी हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जी आप एक सर्टन गारंटी के अमाउंट देते हैं तो हम आपके पोर्टफोलियो को भी कवर कर लेंगे। इंटरनेशनली तो क्रेडिट गारंटी बहुत बड़ा सेगमेंट होता है होम फाइनेंस का, और पाकिस्तान में भी ये चीज़ आ गई जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा PMRC जो एक और काम करती है वो सुकूक्स और इस पूरी चीज़ को फंड करने के लिए मॉर्गेज को सुकूक्स भी इशू करती है, मॉर्गेज बैक सुकूक्स जो होते हैं। एक सवाल आया था कि एसिड बेस्ड और एसिड बैक्ड में क्या फर्क होता है। देखिए पहली बात तो ये समझे, मैंने आपका जब सवाल आया तो मैंने इसकी तहकीक भी की और मैंने अपनी शरिया डिपार्टमेंट से इसके ऊपर जो भी मेरे पास लिमिटेड वक्त है उस पर बात भी की। तो इसमें देखिए ये एसिड बैक या एसिड बेस्ड होना, अगर आप शरिया या इस्लामिक फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो ये चीज़ें दोनों सेम कहलाती हैं। एक्चुअली जो फर्क आता है ये जब आप रेटिंग एजेंसीज के पास जाते हैं और वो कोई बॉन्ड से सुकूक इशू करते हैं, वहां पे जो एसिड बैक्ड और एसिड बेस्ड है उसमें फर्क है। एसिड बेस में ये होता है कि अगर आपने कोई सुकूक इशू किया हुआ है तो उसके अंदर अगर आप उस एसिड की जो इनकम आ रही है उसको उस पूल में डाल लें तो वो आपका एसिड बैक सुकूक होता है। एसिड बेस्ड होता है जो कि नॉर्मल हमारा इजारा सुकूक होता है कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने मोटरवेज के अगेंस्ट सुकूक इशू किया हुआ है तो आप मोटरवे की इनकम को नहीं लेते, सिर्फ आपने उसको स्ट्रक्चरिंग के लिए उसकी बैक के ऊपर एक एसिड रखा होता है। तो ये बुनियादी फर्क होता है इसके अंदर। तो मैंने कहा कि जब जिक्र हुआ है इस चीज़ का तो मैं जो सवाल आया है पार्टिसिपेंट्स को, आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत ही अच्छे एजुकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और माशाल्लाह पार्टिसिपेशन भी हमारी तरफ हमारे पार्टिसिपेंट्स की बहुत अच्छी है। Now moving on to the other thing which is the customers. देखिए कस्टमर्स जो है हमारे पास, अगर होम फाइनेंस की बात करें, बैंक ज्यादातर जो है वो लोकल कस्टमर्स पे फोकस करते थे, लेकिन अब विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रोशन अपना घर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज आ रहे हैं। दुबई इस्लामिक बैंक तो शुरू ही से इस सेगमेंट पे काम कर रहा था, लेकिन रोशन अपना घर के आने के बाद ये हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बाइस है। और आपको ये जान की खुशी होगी कि इस वक्त रोशन अपना घर में सबसे ज़्यादा जो डिसबर्समेंट हुई है वो हमने दुबई इस्लामिक बैंक ने की है। ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो कि हमारे लिए समझना जरूरी है। हमने हाउसिंग की जो पीआर है उनके ऊपर एक डिस्कशन कर ली, जो रिसेंट स्टेप्स उठाए गए स्टेट बैंक की तरफ से उस पर हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम एक चीज समझें कि एक हाउसिंग फाइनेंस का डिपार्टमेंट काम किस तरह से करता है, कैसे बिजनेस आता है, फ्लो क्या होता है। देखिए हमारे पास अगर हम बात करें, जो कस्टमर है वो हमारी ब्रांच जा सकता है, वहां से उसको हाउसिंग फाइनेंस की फैसिलिटी मिल जाती है। हमारे पास डायरेक्ट सेल्स का चैनल होता है जिसके जरिए हमारी हाउसिंग फाइनेंस की फैसिलिटी दी जा सकती है। इसके अलावा हमने रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ कोलैबोरेशन की है जिसके जरिए वो उनके पास भी आप जाएं, बिकॉज अक्सर ये होता है कि एक आदमी 4 करोड़ की चीज लेना चाह रहा है, उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो बैंक ही की तरफ जाता है, और रियल एस्टेट एजेंट्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास केस आ गया, उसकी फाइल बनती है, उस पर तमाम डॉक्यूमेंट्स डालते हैं जो भी हर बैंक की अपनी चेकलिस्ट होती है। क्रेडिट डिपार्टमेंट में या CIU या प्रोसेसिंग जिसे कहा जाता है उसके अंदर केस लॉग इन होता है। उसके तमाम चेक्स होने के बाद जब हम तसल्ली कर लेते हैं कि ये आदमी की क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है, इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इसके ऊपर मॉर्गेज क्रिएट हो सकता है, तो फिर हम कहते हैं जी केस गुड टू गो, हम उसको सैंक्शन या ऑफर लेटर इशू कर देते हैं। और फिर केस चला जाता है एसेट ऑपरेशंस या फिर कैट डिपार्टमेंट में, जो कि तमाम डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स को प्रॉपर करके वो आगे कर लेता है। अच्छा, एग्रीमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारे लिए समझने की जरूरत है। देखिए जो बात फर्क है कन्वेंशनल और इस्लामिक के अंदर, उस पर एग्रीमेंट्स का बहुत अहम रोल है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिशनर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस फील्ड में नए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आना चाह रहे होंगे। तो देखिए जो एग्रीमेंट्स का फ्लो है कि किस वक्त कौन सा एग्रीमेंट साइन होना है, एग्रीमेंट्स बाज़ वक्त ब्लैंक साइन करवा लेते हैं इस सेल्स के लोग,
ये बहुत बड़े शरिया और ऑडिट रिस्क हो सकते हैं, तो इस स्टेज के ऊपर बहुत चीज़ों को केयरफुल होना चाहिए और ये डिसबर्समेंट फॉर्मेलिटीज को हमें देखना चाहिए इस्लामिक मॉर्गेज के हवाले से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो चार्ज क्रिएशन होता है, मॉर्गेज क्रिएशन होता है, फिर इसके बाद पीरियोडिक बेसिस के ऊपर कलेक्शंस के रिव्यू होते हैं। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से जो एक और अहम रिस्क होता है कि हमारा पोर्टफोलियो के शरिया ऑडिट्स और रिव्यूज भी होते रहते हैं, जिनको हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया हुआ तो आपकी इनकम चैरिटी में भी चली जाती है। ये कुछ एक बुनियादी ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ, ताकि आप लोगों को जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में पता चल जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जी इस वक्त दो स्ट्रक्चर्स ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो शिरकतुल मिल्क का मिजारा है और दूसरा जो है वो डिमिनिशिंग मुशारका है। दोनों स्ट्रक्चर्स कमोबेश एक ही तरह वर्क कर रहे होते हैं कि शुरू में बैंक का शेयर ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है ग्रेजुअली बैंक का शेयर कम हो जाता है और कस्टमर जो है बैंक को एक मंथली रेंटल पे कर रहा होता है, जो कि डिपेंड वेरी करता है कि कौन सा प्राइसिंग बेंचमार्क इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर हम डीआईबी के उसमें करें कि एक फिक्स रेंट होता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट होती है, एक वेरिएबल होता है जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है, और बाज़ औक़ात होम फाइनेंस के अंदर बैंक्स के पास प्रॉपर्टी तकाफुल का भी ऑप्शन होता है कि प्रॉपर्टी को कवर किया जाए, और बाज़ औक़ात लाइफ तकाफुल का भी ऑप्शन होता है। तो ये जो एडवांस या सप्लीमेंट्री रेंट है उसको तकाफुल एक्सपेंस है उनमें इसको शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, एक मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताऊं अपने करियर का, कि लोग कहते हैं कि जी इस्लामिक फाइनेंस में क्या है। मैं एक बैंक में काम कर रहा था, तो मेरे सुपरवाइजर जो है ही वाज ऑन लीव, तो मुझे ब्रांच से एक क्वेरी आई कि जी एक फलानी जगह पे एक थोड़ा सा मसला हो गया है, वहाँ पे किसी ने होम फाइनेंस के लिए अप्लाई किया इस्लामिक के लिए। उन्होंने जो अपने जो मुफ्ती साहब हैं उस लोकल मस्जिद के उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप ज़रा आके उनसे मिलें। फिर मैं गया कस्टमर के पास, तो मैंने जो मुफ्ती साहब का फतवा पढ़ा तो उन्होंने सब चीज़ें लिखी हुई थी कि हाँ भाई डिमिनिशिंग मुशारका होना चाहिए, ये इजारा की चीज़ें ये है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। तो जब हमने डीप डाउन किया कि जो मुफ्ती साहब को सवाल दिया गया था वो उन्होंने जब उसको ट्रांसलेट किया, बिकॉज हमारा फतवा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर था, तो जब वो फतवा को उर्दू में कस्टमर ने ट्रांसलेट किया तो बिल्कुल उलट हो गया। उसकी वजह से एक बैंक के लिए प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में फिर हमने उनको समझाया तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि देखिए आपको बज़ाहिर तो लगेगा कि इस्लामिक होम फाइनेंस और कन्वेंशनल होम फाइनेंस की वही किस्तें आ रही हैं, वही एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ नामों से साइन हो रहे हैं, लेकिन असल में ये प्रोसेस और पूरी की पूरी चीज़ें फ़र्क है, और जो इस प्रोसेस की कंप्लाइंस है यही हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है शरिया कंप्लाइंस के लिए। अब हम आ जाए लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हम करते हैं, जैसे हम प्रॉमिस टू लीज करते हैं, मुशारका एग्रीमेंट है, लीज पेमेंट एग्रीमेंट है, परचेज एग्रीमेंट है, सर्विस अंडरटेकिंग है, टाइटल एजेंसी एग्रीमेंट है, मॉर्गेज डीड है, और कुछ और शरिया रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास अगर इसेंशियल शरिया गाइडलाइंस होती हैं कि किस स्टेज पे कौन सा हमें एग्रीमेंट साइन करना है। मैं इस वक्त इस डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट विल गो बियॉन्ड द मैंडेट, बट चीज़ जो समझने वाली है, जो अहम है, वो ये कि हमें हर स्टेप का, हर गाइडलाइन का प्रॉपरली राइट टाइम पे चीज़ों को फॉलो करना है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का जो दूसरा अहम मौजू है, वो है रोशन अपना घर। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को ओवरऑल, अगर हम रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बात करें, रोशन अपना कर उसका एक सबसेट है, तकरीबन 4 अरब डॉलर से ज़्यादा के इनफ्लोज अभी तक आ चुके हैं, और हर महीने ये इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनकी तरफ से एक पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। इस पूरे जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो सबसे अहम कंपोनेंट है वो है रोशन अपना घर। देखिए, हमारे जो दोस्त भाई रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर हैं, आप सब जानते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि जी हम पाकिस्तान के अंदर अपना घर बनाए। तो रोशन अपना घर के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर बगैर ट्रैवल किए हुए अपना घर खरीद सकते हैं, और इसके जरिए वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा बिकॉज रोशन अपना घर एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी से आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, कोई प्रॉपर्टी तैयार करें लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन के जरिए से,
तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये कि आपने जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट किया हुआ है, जो इस्लामिक INPC होता है, आप उसके अगेंस्ट आप लियन मार्क करा लें, तो आपको काइबोर के ऊपर फाइनेंसिंग मिल जाएगी। वैसे अगर आप दूसरी तरह से अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली फाइनेंसिंग K+3 या K+4 पे होती है, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है इसमें। दूसरा है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं फाइनेंसिंग नहीं लेना चाह रहा, ना लियन बेस्ड, तो आप अपने डायरेक्टली अपने पैसे भेजें और उसके जरिए प्रॉपर्टी भी परचेज कर लें, और उसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप फाइनेंसिंग चाह रहे हैं तो आप करेंगे कि आप अपना जो पैसे हैं उनको आप नॉन लियन बेस्ड रखें, और जो आप घर के पेपर हैं वो बैंक के पास होंगे और नॉर्मल मॉर्गेज फाइनेंस होगा। लेकिन उसके अंदर भी आपको जो मेन फायदा होगा कि आपको अगर नॉर्मली K+3 या K+4 की फाइनेंसिंग होती है, तो यहाँ पे K+1.5 है, जो कि बहुत ही मुनासिब रेट है और बहुत ही अच्छा रेट है, और इसके प्रोसेसिंग चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एक्सक्लूसिव प्राइसिंग है, और साथ ही साथ इसके अंदर फिक्स रेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और कि अगर आप 5 ईयर के लिए या आप करना चाहें, इसमें 3 ईयर का ऑप्शन नहीं दिया गया, 5 ईयर का ऑप्शन है इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा आप अर्ली सेटलमेंट अगर चार्जेस का अर्ली सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप 1 साल की बात करें तो उसमें कोई चार्जेस नहीं होते आपके। बैंक खुद प्रॉपर्टी का तकाफुल या इंश्योरेंस करवाता है, और अगर बैंक समझता है कि या कस्टमर खुद चाहता है कि लाइफ तकाफुल भी कर ले, बिकॉज बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी चूंकि मॉर्गेज एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, तो अगर खुदा ना खास्ता इस टेनर में जो मेन ऑब्लिगेटर है उसको कुछ हो जाए, तो फिर उसके अंदर अगर लाइफ तकाफुल है तो वो कवर हो जाता है, उसकी छत का मसला नहीं होता। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अंदर देखें, विदाउट लियन के अंदर पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि को एप्लीकेंट। अच्छा, एक रोशन अपने घर के अंदर जो सबसे अच्छे इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये है कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अप्लाई करूँ, तो मेरा सारा का सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। एक पोर्टल बना हुआ है, आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपनी तमाम तफसीलात बताएं, वो चीज़ें आपकी अपलोड हो जाएंगी, आपका बैंक उसे डाउनलोड करेगा, एवेलुएट करेगा, और आपका ऑफर लेटर भेज देगा। अब फॉर एग्जांपल आपको अप्रूवल मिल गया कि हाँ जी, अब आप आ नहीं सकते, किसी वजह से बिजी है, पिछले दिनों कोविड का काफ़ी ज़्यादा मसला था, तो ट्रैवलिंग बंद थी, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर आप अपना कोई नॉमिनी या कोई आप यहाँ पे कोई को एप्लीकेंट कर दें, जो कि आपके बिहाफ पे आप उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, वो आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन कर देगा, और आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। उसका एक क्राइटेरिया कि वो ब्लड रिलेटिव हो या कोई स्टेट भी हो सकता है जिसको आप जानते हो या ट्रस्ट करते हो, बट पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे तो आपका ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले एक पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किल था, अब आपके लिए आसानी है। दूसरा जो आपको इसके अंदर फायदा है कि आपको जो टैक्स लगेगा वो आपको फाइनल वाला टैक्स लगेगा, और वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी 1 पर। इसमें भी मैं अगेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा कि बीच में जो कुछ ट्रांजेक्शन हुई उसके अंदर बड़ी डेवलपर्स लाइक DHA दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, लेकिन उस पर स्टेट बैंक ने FBR को इन्वॉल्व किया, और उसके बाद जो है इसके ज़रिए सारा का सारा मामला सेटल हुआ, और ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट किया गया। मैं जो अभी 2-3 वर्किंग ग्रुप्स बने हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको मैं आई एम पार्ट ऑफ दैट। हमने डेवलपर्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। अब कमिंग बैक टू दुबई इस्लामिक बैंक, थोड़ा सा मैं आपको एक स्लाइड पे बता दूं कि हमने 2007 में स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह तकरीबन मोर देन 15 ईयर से DIB काम कर रहा है। हमने अभी तकरीबन 11 शहरों में हम होम फाइनेंस ऑफर कर रहे हैं, मजीद 11 शहरों में हमने अनाउंस किया है। 8 शहर हमने ईद से पहले ओपन किए, बिकॉज हम अपनी आउटरीच बढ़ाना चाह रहे हैं, और बिकॉज वी फील के इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है तमाम जगहों पर है। जैसे आप ये देखें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मेजर सिटीज़ में तो है, बट इन सिटीज़ के अंदर भी हम इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, और इन शहरों में भी हम मौजूद हैं। तो ये एक बेसिक कुछ गाइडलाइन थी। बाकी जो क्रेडिट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इसके अंदर आपको फॉलो करनी होती है, जो किसी भी लोन को अगर आप देखते हैं। और मैं आखिर में तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जो कि आई थिंक बड़ी रेलेवेंट है। देखिए, अभी तक जो हम मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं वो रेडी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। रेडी प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग अब बंद कर दी है। जो रेडी प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो ऑन प्लान फाइनेंसिंग होती है। इसके अंदर देखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग का फ्यूचर है वो है ऑफलाइन फाइनेंसिंग। ऑफलाइन फाइनेंसिंग ये होती है कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है,
वो बन रहा है, फ्लैट तैयार नहीं है अभी, उसका फाउंडेशन खुद ही है और ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है, उसमें किस तरह से फाइनेंसिंग की जाए। या एक ये वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऑफ प्लान, कि आप फ्लैट से अपार्टमेंट्स की बात करते हैं। एक होता है वर्टिकल ऑफ प्लान। वर्टिकल ऑफ प्लान इस तरह से होता है कि एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर अभी लैंड एक्वायर हुई है और उसमें आगे डेवलपमेंट हो रही है। इसके अंदर जो वर्टिकल ऑफ प्लान है, इसके अंदर भी और हॉरिजॉन्टल में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह दुबई इस्लामिक बैंक इज द फर्स्ट बैंक इन पाकिस्तान जिन्होंने इस पे हमने अपनी प्रोडक्ट अप्रूव करवा ली है बोर्ड से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और हमें इसमें बहुत गाइडेंस भी मिली स्टेट बैंक की तरफ से। और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम ये भी लॉन्च करने जा रहे हैं वेरी सून एक लीडिंग डेवलपर्स के साथ, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पहली ऑफ प्लान फाइनेंसिंग की भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे। अच्छा, इस देखें टाइम बहुत थोड़ा था, और मैंने कोशिश की कि हाउसिंग फाइनेंस, इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस की चीज़ों को मैं कवर कर लूँ। मैं भी चैट बॉक्स में आके आपके जो सवाल हैं उनको भी एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, इस निबाफ के अलावा हमारे कुछ कुछ मेरे और वेबिनार्स भी हैं जो हमने हाउसिंग फाइनेंस पे किए। कुछ वेबिनार्स में इमरान साहब भी हमारे साथ उन्होंने शर्फ दिया एज ए पैनलिस्ट हमारे साथ आए। तो IBA सीफ के की अगर आप यूट्यूब पे जाएं या वेब पेज पे जाएं तो उनका एक हमने इस्लामिक होम फाइनेंस के ऊपर डिटेल वेबिनार किया हुआ है। एक हमने लो कॉस्ट हाउसिंग, इस्लामिक लो कॉस्ट हाउसिंग पे एक डिटेल वेबिनार किया हुआ है। इस तीसरा हमने रोशन अपने घर पे एक बहुत डिटेल वेबिनार किया हुआ है। तो ये डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे अपने कुछ रिसर्च पेपर्स हैं इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस के हवाले से जो मुख्तलिफ औकात में पब्लिश भी हुए हैं, और वो आपको अगर आप सर्च करेंगे मेरे नाम से तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपके साथ उनका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, तो आपको नज़र आ जाएगा उसका। ये इस्लामिक फाइनेंस न्यूज़ में भी आए थे और स्टेट बैंक ने पब्लिश की थी, और अभी रिसेंटली जंग ने अपना सप्लीमेंट इशू किया था, तो उसके अंदर भी ये डिटेल आपको मिली थी। ये देखें, ये लिंक्स हैं सारे के सारे। यहाँ से आप अगर इस बारे में, इस्लामिक होम फाइनेंस के बारे में मजीद आप जानना चाहें तो आपको ये भी मिल जाएगा। ये इंशाल्लाह इस PPT के अंदर शामिल होगा। और दैट इज बेसिकली इट। मैं ज़रा चैट बॉक्स देख लूँ कि उसके अंदर हमारे पास क्या क्या Q&As आए। अच्छा, इसके अलावा देखें, एक सवाल आया था रीट्स के हवाले से, मुझे इमरान साहब ने रेफर किया था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का सिंपल आप समझ लें कि जैसे मैं एक कंपैरिजन करूं कि एक आदमी किसी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है कि वो स्टॉक मार्केट में जाके उसका शेयर ले लेता है। अच्छा, अब बात क्या है कि सिमिलरली रियल रीट्स में भी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर भी ये होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो कि मुख्तलिफ लोगों से फंड्स लेके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में करता है, और उससे जो रिटर्न आता है वो जितने भी रीट के शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस वक्त आरिफ हबीब डॉलमेन का रीट बड़ा रीट है जिसने डॉलमेन मॉल कराची को किया हुआ है। अभी कुछ और मजीद रीट आ चुके हैं। अच्छा, एक और सवाल जो आया था कि जी आपने बैंक्स की तो बात कर ली, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी हैं? तो अभी ट्रेलिस के नाम से एक कंपनी आई है, उन्होंने भी काम अपना स्टार्ट किया है, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है। फिर एक पाकिस्तान हाउसिंग फाइनेंस के नाम से भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आई है, उन्होंने भी काम किया। तो इसमें कुछ 2-3 और कंपनीज को भी लाइसेंस मिले हैं। वी एक्सपेक्ट के उसमें काम काफ़ी तेज़ी से होगा। तो ये एक ओवरव्यू हमारा था जो सारा का सारा हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग फाइनेंस। अब हम सवालात की तरफ आ जाते हैं। पहला सवाल है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन अप्रोचेस टू HF एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग बाय बैंक्स फॉर इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंक। देखिए, मैंने आपको इसका यही जवाब बताना था कि देखिए, जो स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग है वो कन्वेंशनल इस्लामिक बैंक की फर्क नहीं है, वही रिपोर्ट्स जाती हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि कन्वेंशनल बैंक के अलावा जब इस्लामिक बैंक का ऑडिट होता है तो उसमें जो है हम साथ साथ शरिया ऑडिट भी किया जाता है। दूसरा जो एक सवाल है कि why there is no focus on sustainable residential compound, why we are still focusing on individual basis, whereas we know housing is a concern of public at large, and housing like all other things need to be self sustainable. देखिए अरसलान साहब, बात सारी है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक मिसिंग लिंक है इस वक्त हाउसिंग सेक्टर के अंदर, वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रीरा के नाम से, जिसकी वजह से जनरली बैंक्स थोड़े से शाय अवे करते हैं डेवलपर फाइनेंस में या इस सेक्टर में आने में। लेकिन वो भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ भी प्रोसेस में है। रीरा
तो ये आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये सेक्टर और ज़्यादा रेगुलेट हो जाएगा। दूसरा जो मोहम्मद नईम साहब आपने सवाल किया है, व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सब्सिडी, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। ऑफलाइन फाइनेंसिंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि जी क्या होती है, किस तरह से होता है। और एक और आपने पूछा कि ऑफलाइन फाइनेंसिंग विल बी अवेलेबल ऑन प्रॉपर्टीज ओन बाय सेलेक्टेड डेवलपर्स बाय डीआईबी ओनली इनिशियली। जी बिल्कुल, ये सेलेक्टेड डेवलपर्स में होगी और फिर ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हमें नजर आएगा कि जी चीजें बेहतर हो रही हैं तो हम और डेवलपर्स को भी इसमें करेंगे। तो फिर इसके अलावा कुछ रीट्स पे हमने बात कर ली, एसिड बैक एसिड बेस की बात कर ली। आपका सवाल था व्हाट आर द अदर, मोहम्मद रफीक साहब का व्हाट आर द अदर HBFC DFIs involved in home finance, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। So that is basically from my side. Thank you very much to all the participants. Thank you very much to Nibaf for inviting me, particularly Ahmad Saab, Sadaf and Manzoor. Thank you to my fellow panelist Imran Saab for his enlightening views. Thank you. So there are two more questions in the chat box, if you can take those as well. जी There is, बताइए। how will customers sign documents in RDA and do token bayana? And the other question is, can you confirm any change in MPMG rate is expected to increase as SPP discount rate is increased? देखिए ये जो MPMG का तो मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ कि ये गवर्नमेंट रन स्कीम है, तो आई थिंक एज अ बैंक का मैं कमेंट नहीं कर सकता उस हवाले से। लेकिन जो पहला सवाल इन्होंने पूछा है RDA के हवाले से, तो रोशन अपना घर के हवाले से, तो मैं देखिए बात क्या है, हमने अभी तक जितने भी केसेस किए हैं उसमें ज्यादातर केसेस में कस्टमर्स पाकिस्तान आए और उन्होंने आके खुद बयाना किया, खुद टोकन किया, खुद सारे एग्रीमेंट साइन किए। कस्टमर्स प्रेफर नहीं करते कि वो बाहर रह के डिजिटली अप्लाई करें, बिकॉज अगर वो कर भी लें, उनको बैंक दे भी दे, तो अभी थोड़ा सा हमारा जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है और उससे ज़्यादा जो ट्रस्ट का डेफिसिट है, उस वजह से लोग प्रेफर करते हैं वो खुद आके दें। और तो इसलिए अप्रूवल वाली जो साइड है वो तो डिजिटली हो जाती है, लेकिन ये वाला जो लेग है ये अभी नॉर्मल तरीके से हो रहा है। आई होप आई हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस। थैंक यू। सदफ आप म्यूट है। म्यूट है अभी। There's another question. Can we club our partner relative income for housing finance? जी कर सकते हैं आप इसमें, अगर बैंक उसको जो है फॉलो करे, बिकॉज इस पे बैंक्स की पॉलिसीज वेरी कर रही होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम बैंक टू बैंक। जो MPMG स्कीम है इसमें 4 पर्सन्स को क्लब करने की इजाज़त दी गई है, बट डेफिनेटली बैंकों ने जो डिफरेंट अब तक जो फाइनेंसिंग की है उसमें जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है, तो सम टाइम्स वो एक भाई को भाई के साथ या इस तरह की जो होती है, कुछ मुख्तलिफ बैंक जैसे जहांजेब साहब ने कहा कि वो डिफर करती हैं, बट ऑफ कोर्स क्लबिंग अलाउड है, वो बैंक टू बैंक इनको चेक करना पड़ेगा। अब एक जो जैसे उन्होंने रेट का पूछा है, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ज़ाहिर है कि थोड़ी सी तब्दीली आई है गवर्नमेंट में, तो हमारी जो मैनेजमेंट है उनके साथ मुनासिब वक्त पे बातचीत करेंगे। होपफुली इस तरह की चीज़ें आम तौर पे जारी रखी जाती हैं, जैसे जो अब तक की गवर्नमेंट की स्कीम रही हैं, जैसे पिछले दौर हुकूमत PMYBL थी या कामयाब जवान के हैं, तो इकोनॉमी में रेट चेंज होते रहे लेकिन उन स्कीम्स के लिए रेट चेंज नहीं किए गए। तो लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या होता है। Sir, someone has asked if physical presence is required in Roshan Apna Ghar Finance. Is it required? Physical presence? नहीं, फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये डिजिटली भी सारा हो सकता है। और जो कोई एप्लीकेंट हम करते हैं इसके अंदर, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ताकि वो फिजिकली ना और डिजिटली सारी की सारी ट्रांजेक्शन करें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डू यू थिंक गवर्नमेंट सब्सिडी इन हाउसिंग फाइनेंस विल कंटिन्यू इवन आफ्टर चेंज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? भाई हमें फिलहाल तो ये लग रहा है कि जारी रहेगी, क्योंकि आम तौर पे इस तरह की जो पब्लिक की स्कीम्स होती हैं उनके कुछ नाम कुछ स्पेक्स बदल जाते हैं, लेकिन वो इन वन फॉर्म और द अदर जारी रहते हैं। हमें उम्मीद रहेगी, लेकिन अब थोड़ा वक्त में ही लगेगा जिसमें पता चलेगा कि भाई मौजूदा हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज हैं। Okay.
So thank you very much. I would like to say thanks to both of you for this overview on Islamic home finance and sharing different products with us. एक क्वेश्चन रोशन अपने घर के हवाले से है. Okay, we have another question, which is what is maximum limit on Roshan Apna Ghar under non-lien product? देखिए इसमें कोई ऐसी मैक्सिमम लिमिट नहीं है. हमने 100 मिलियन के भी केसेस किए हैं. अगेन इट डिपेंड्स कि उस बंदे की रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है और बैंक की अपनी क्रेडिट पॉलिसी क्या है. व्हाट जो क्रक्स है इस तमाम डिस्कशन का, देखें बैंक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल और अगर कस्टमर में रीपेमेंट कैपेसिटी है और प्रॉपर्टी में की वैल्यू उतनी है तो बैंक्स कर देते हैं. We are receiving questions. We are constrained on time, लेकिन ये एक आखिरी क्वेश्चन है. Is there any minimum income required under Roshan Apna Ghar? नहीं, इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन बात ये कि पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए इंसान की 1.5-2 लाख रुपए की इनकम होती है तो वो कोई अच्छी चीज लेता है. बिकॉज 50% DBR पे आपको पता है कि प्रॉपर्टी अब लाखों की तो बात नहीं रही है, कम से कम करोड़ की एक अच्छी चीज आती है. तो करोड़ रुपए के ऊपर अगर नॉर्मल लें तो लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट से ज्यादा ही बनती है इंस्टॉलमेंट. तो उसकी 2 लाख 2.5 लाख इनकम होगी PKR में, तभी कुछ को ले पाए. Thank you very much, sir. We have Sajid Ali with us. He is our Learning and Development Department. I would like him to say a few words about today's webinar, and would request him for a vote of thanks as well. Okay, thank you, Sadaf. सबसे पहले सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जावेद साहब का और इमरान साहब का. Very learned persons. इस एरिया के अंदर इनकी जितनी एक्सपर्टीज है, डेप्थ है, इट प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम इनकी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ हम शेयर करवा सकें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिसमें ये नॉलेज दूसरे लोगों के साथ शेयर हो सके. सो थैंक यू सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. एंड इंडीड इट वाज वेरी हार्टनिंग कि जो चीज़ मैसेज जो की निकल के आ रहा की मैसेज है कि हाउसिंग फाइनेंस, होम फाइनेंसिंग, इसके अंदर दिस हैज गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल इन पाकिस्तान एंड अपसाइड इसके अंदर बहुत ज़्यादा है. और सेकंड जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो इस्लामिक बैंक्स जो हैं इसके अंदर काफ़ी फोर्थकमिंग है एंड दे आर रेडी टू हेल्प मासेस. इट्स वेरी इंकरेजिंग. और ख़ास तौर पर पिछले कई सालों से जो एक स्टैग्नेंट एक ट्रेंड चला आ रहा था उस चीज़ को हमने ब्रेक किया. वी आर रीचिंग टू न्यू हाइट्स. जैसे हमने कहा कि दिस टाइम वी विल बी क्रॉसिंग $200 billion rupees. That's very encouraging. Before formally closing it, I would just like to share with you कि निबाफ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं. निबाफ certainly बहुत सारे न्यू इमर्जिंग एरियाज के अंदर हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. इस्लामिक बैंकिंग के अलावा जो है ESG है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, डाटा साइंसेस है, और इसके अलावा कमर्शियल बैंकिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. वी हैव इंट्रोड्यूस AML सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. और इसी सिलसिले के अंदर ये वेबिनार सीरीज जो है ये भी इसी सिलसिले की एक नई कड़ी है जो हमने रिसेंटली स्टार्ट की है. और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोकल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग बहुत सारे एक्सपर्ट को जो बैठे हुए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, एरियाज हैं जिसमें वी वुड लाइक कि अपनी नॉलेज है दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें. एंड इट वाज वेरी इंकरेजिंग कि आज के जो वेबिनार के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें. सो this webinar is part of that इसमें हमारे जो इनिशिएटिव है उसी के अंदर. इस सिलसिले में इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी हम लोग काफ़ी प्रोग्राम हम कर रहे हैं. यू ऑलरेडी नो IBCC, FIBO है, IBBO है. इसके अलावा शरिया स्कॉलर्स के लिए हमारे पास एडवांस प्रोग्राम्स हैं शरिया स्कॉलर्स के लिए. इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर एडवांस प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं. एंड वी आर ओपन टू न्यू आइडियाज. अगर आपके पास कोई न्यू आइडियाज हैं, certainly we would like to develop program in collaboration with you. We are already in talk with a number of commercial banks, Islamic banks in particular, ताकि उनकी training needs को समझ सकें. And we are open to new ideas. Finally, I would like to thank NIBAF team, Sadaf, Arsalan, Ahmed Wasim, and IT के जितने भी लोग हैं कि उन्होंने इतना टाइम निकाला. उन्होंने this webinar wasn't possible without their support. Thank you, sir. Thank you, Janzir Saab. Thank you, Imran. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. I would also like to say thanks to all our attendees. हमारे questions अभी भी receive हो रहे हैं. So you
want to Depends answer upon this Javed साहब question. जावेद साहब We कितनी देर are- बैठना चाह रहे हैं देखिए हम तो 24/7 वाले बैंकर्स हैं, तो अगर सवाल है तो we are most likely to answer. आप बताएं क्या सवाल है? Sir, can a resident Pakistani who have RDA can avail Roshan Apna Ghar finance? And what is the difference between fixed and variable rate and off-plan financing? वो तो I think आपने पहले explain कर दिया है. Participants की information के लिए will be sharing the presentation with you as well. तो हो सकता है कुछ questions आपके उसमें भी answer हो जाएंगे. जी जावेद साहब. देखिए जी, रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए तो आरडीए नहीं है, ठीक है. ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए आरडीए होता है, और इसका भी क्राइटेरिया होता है एक सर्टेन पीरियड तक अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बनते हैं और फिर आप उसके अंदर आरडीए के एम्बेड में आते हैं. दूसरा जो आपने सवाल पूछा था कि रेट्स क्या होते हैं, तो देखिए जी, अगर आप लियन बेस कर रहे हैं तो आपको कायबोर या पीकेआरवी का रेट पे करना पड़ता है, और अगर आप नॉन लियन बेस कर रहे हैं तो आपको कायबोर या पीकेआरवी प्लस 1.5 का स्प्रेड देना होता है. ऑफलाइन फाइनेंसिंग का सिलसिला ये है कि ये बिल्कुल प्रोडक्ट अब आ गई है, बट इसके लाने के लिए जो एक अहम इंग्रेडिएंट होता है वो डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसके एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गए हैं. एज सून एज ये प्रोडक्ट लॉन्च होती है आपके लिए ये अवेलेबल होगी और आप इसको भी अवेल कर सकते हैं. आई बिलीव यही इनके सवाल थे, या कोई और भी सवाल है तो आप प्लीज मुझे बताएं. जी सर, नहीं बस यही क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन आया है, कैन कस्टमर अलाउ टू प्रीमेच्योरली एडजस्ट द रोशन अपना घर? देखिए फाइनेंसिंग जो उसने सॉरी ये सही ये देखिए, इसमें बात ये कि स्टेट बैंक की अगर आप वेबसाइट विजिट करें तो एमपीएमजी और रोशन अपने घर दोनों के हवाले से बहुत अच्छे एफएक्यूज मौजूद हैं, और आई थिंक वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो अगर आप उसको रेफर कर लेंगे तो कॉमन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा. We are receiving more and more questions. Please repeat asset-backed financing with motor, for example. देखिए, एसिड बैक और एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग, पहले तो बात ये कि इसका इस्लामिक बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी से ताल्लुक नहीं है. ये बेसिकली जो रिस्क रेटिंग टर्मिनोलॉजी होती है, जब बैकरा या पे जेसीआर वीआईएस इन चीज़ों को देखते हैं तो उसके साथ इस चीज़ को देखा जाता है. इसमें होता ये कि जो एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग होती है उसके अंदर जो एसेट है उसके जो कैश फ्लोज हैं वो आपके रिटर्न का पार्ट होते हैं, जबकि जो दूसरी फाइनेंसिंग है उसके अंदर जो हम मोटरवेज का करते हैं या हम किसी एयरपोर्ट को रखते हैं तो उसकी बैकिंग एसेट की होती है, उसकी कैश फ्लोज का कोई लिंक नहीं होता. तो ये इट्स नॉट माय लाइक आई सेड, इट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. मैंने भी अपने शरिया डिपार्टमेंट से पूछा, उन्होंने बताया कि दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इस्लामिक फाइनेंस, बट चूंकि सवाल पूछा गया था तो इट वाज माय ड्यूटी टू गिव एन आंसर. Thank you very much, sir. ये टॉपिक इतना I think it's so close to everyone के हर कोई इस पे और questions करना चाह रहा है, but unfortunately we are constrained on time, तो हम इसको end करना चाहेंगे यहाँ पे. Our presenters have been kind enough to allow us कि हम presentation आप लोगों के साथ share कर सकें. इस webinar की recording जो है that will be available on our website. If you have any questions, any suggestions जो कि आप बाद में करना चाहें तो you can you have our email address और आप वो हमारे साथ share कर सकते हैं. We'll try कि हम अपने presenters से उसके answers लेके आप लोगों को provide कर सकें. Thank you very much. So with this we would like to sign off. Thank you everyone. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Ahmed Saab. Thank you. Allah Hafiz.